Good evening, ladies and gentlemen. How are you all doing today? Welcome to the Ask Abhishek Raj weekly mastermind show where I'll gear you up with all that you need to know to make money in the coming week. Well, congratulations, first of all, to everyone and to me as well. We made quite good amount of money, as you can all see the kind of indices and the stocks and the sectors. The one that we picked up did massively well. Markets are trading at all-time highs. Now, the question that I get every day, everyone is worried about market kahan tak jayegi, kidhar tak jayegi, is the market topping out? There are so many questions and these are quite obvious. You need to protect your capital, you need to protect your profit. If you are not in profit, then it's even severe for you, because any correction will actually bring you a lot deep into the water. That's going to be very difficult. So having said that, on the same theme, this week we are going to talk about how to prepare yourself for the upcoming markets in the coming weeks. Remember, at the end of the month, we have budget. There are lots of expectations from the budget. The point is, we are just out of pandemic. If you talk about valuations, of course, valuations are not correct. I mean, 14,400 index, historically high, your GDP is on the downtrend, and lots of things are not in place. So there is, of course, a deviation between the actual valuation and the prices of these stocks. So that's something that's well said and agreed. However, my friend, don't forget, prices are not derived or driven by the values. The prices are driven by human emotions. When two people, a buyer and a seller, agree on a specific price, if I agree to sell something at price A and you agree to buy the same thing on a price A, then the price changes to A. Next trader, somebody comes in and bids to buy something at, let's say, a higher price B. He's more aggressive on the market. He feels like, I will lose the opportunity. मेरा खो जाएगा अगर मैं नहीं इधर खरीदूंगा तो शायद I'll lose this opportunity to buy. तो इस situation में, when buyers are more aggressive than sellers, and sellers are like, okay, fine, I'll sell it on even higher prices. Sellers are quite into defensive mode. Then we see prices are going up. Now, when buyers are depressed, कि नहीं अभी और नीचे आएगा, नीचे खरीदूंगा, and sellers are aggressive, जिस भाव पे मिलता है बेचो, जो भाव मिल रहा है बेचो, then the prices go down and we say it's a downtrend. So simple, you know, we often complicate things. All the tools that we use, like candlesticks, indicators like Bollinger Band, moving averages, RSI, relative strength indicator, and so many things whatsoever, different kind of chart patterns that we use, the agenda, the purpose, जो पूरा का पूरा इंटेंट होता है इन सारी टूल्स का इस्तेमाल करके, वो समझने का मकसद हमारा ये होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या चाह रहे हैं, और जो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन है, लेट्स से देयर आर 1 लाख पीपल इन अ in any market. Some people are buyers, some people are sellers. So with the data, with all the tools at our disposal, we try and understand what is the overall psychology of the market. If more than 50,000 people are aggressively buying, then of course prices will go up. If more than 50% people are aggressively selling, and now having said that, stock market में number of लोगों से फर्क नहीं पड़ता. फर्क किससे पड़ता है? Where is majority of the money flow? अगर 10,000 करोड़ का बाइंग आएगा और 5,000 करोड़ के ही सेलर्स होंगे, या 10,000 करोड़ के जो सेलर्स हैं वो कम अग्रेसिव हैं इन कंपैरिजन टू 10,000 करोड़ के बायर्स किसी भी भाव पे खरीदने को तैयार हैं, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना मिल रहा हो, प्राइसेस ऊपर जाएंगी. Prices change when two people agree to buy and sell. Remember the basics of economics. The prices change by the supply and demand dynamics mechanism. So हम कितने भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, 10,000 तरह की चीजें होती हैं. हम बेसिकली कोशिश क्या करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का ओवरऑल माइंडसेट क्या है, व्हाट इज द मार्केट साइकोलॉजी. बॉलिंजर बैंड से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द वोलेटिलिटी. जब बहुत ज्यादा इंडिसिसिवनेस होती है, लोगों के अंदर काफी ज्यादा हाइप है, चढ़ रहा है, गिर रहा है, lots of buying and selling is happening, we say it's high volatile market. When the relative strength index keeps on moving up, momentum is there, strength is there, then we say yes, market में buyers का strength है.
व्हेन मूविंग एवरेजेस पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, मतलब अगेन एट दोज स्पेसिफिक लेवल्स देयर इज लॉट्स ऑफ डिमांड कमिंग इन। जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा है तुरंत से खरीदारी आ जा रही है, बायर्स बहुत अग्रेसिव है मार्केट के अंदर। सिमिलरली वी हैव ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ADX क्या बताता है? ट्रेंड स्ट्रेंथ। अगर ADX का स्लोप ऊपर है, बोले तो बहुत सिंपल, जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड है मार्केट के अंदर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। सो मुद्दा डिस्कस करने का नहीं है कि RSI से क्या होता है, बॉलिंजर बैंड से क्या होता है, कैंडलस्टिक से क्या होता है। मुद्दा सिंपल ये समझाने का है कि हमें मार्केट के डायनामिक्स को समझना है, और उसे समझने के लिए द विजुअल एनालिसिस दैट वी कॉल टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस को लोग कंफ्यूज कर देते हैं। देयर इज नथिंग टेक्निकल इन टेक्निकल एनालिसिस, इट्स ऑल विजुअल। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। फंडामेंटल एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ द कॉज, कि कोई चीज क्यों हुई। टेक्निकल एनालिसिस द एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट, कि क्या हो रहा है। और पैसे तो भैया क्या हो रहा है से बनते हैं, कि क्या चढ़ रहा, क्या गिर रहा, क्या चीजें चढ़ेंगी, क्या चीजें गिरेंगी, या क्या चीजें साइडवेज रहेंगी। सो अकॉर्डिंगली यू इम्प्लीमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो आज जो हमारा फोकस होगा बात करने का, वो ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से हम अपने आप को प्लान करें। बिकॉज अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, यू ऑलरेडी हैव ऑल योर स्टॉक्स इनटू मैसिव प्रॉफिट्स। तो ऐसे सिचुएशंस में जब इंपॉर्टेंट इवेंट सामने होते हैं, तो कई बार क्या होगा, हम अर्निंग के सीजन्स भी शुरू हो चुके हैं, तो वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे टाइम में टू जंप इनटू न्यू स्टॉक्स एंड स्टार्ट अ फ्रेश न्यू रिस्क ऑल टुगेदर, इट्स ऑलवेज वाइजर टू होल्ड ऑन टू योर परफॉर्मिंग पोजीशंस, बिकॉज ऑन योर परफॉर्मिंग पोजीशंस यू हैव अ कुशन। अगर कहीं पे 10% का मुनाफा है और वो 5% गिर भी जाता है, तो आपका तो 5% का प्रॉफिट फिर भी बचेगा। लेकिन अगर आप नहीं ट्रेड करते हो, वो 5% गिर जाता है, यू आर मेकिंग अ लॉस ऑफ 5%। सो इतना ही था कहने का मतलब। डेटा देखते हैं, what exactly do we have on the table for the markets in the coming week. Let me share my screen. Okay. सबसे पहले तो पिछले हफ्ते का ओवरऑल मार्केट स्नैपशॉट। शानदार हफ्ता, बहुत ही शानदार हफ्ता। सारी चीजें बहुत मैसिवली अच्छा रिटर्न दिया। निफ्टी 2% से ऊपर ज्यादा पॉजिटिव, ऑलमोस्ट 3% पॉजिटिव। बैंक निफ्टी आईटी 7%, rocked on IT. Metals 8% positive. Remember, we had been giving you metals, Hindalco, Tata Steel. We are holding Tata Steel for like 2 months now. It's trading around, it's what, 52-week high or something. Finance did good. FMCG was kind of flat to negative, and MNCs did good. Services, everything simply पूरा का पूरा एक पॉजिटिव वीक था। एक चीज गौर करने की है, VIX बढ़ रहा है 5%, 5.5%। volatility has increased. Let me bring my highlighter. Okay, so if you see volatility, that has increased by 5.5%. काफी सारी चीजें चल रही हैं मार्केट में लेके, थोड़ा इंडिसिसिवनेस है। जैसे वैक्सीन वगैरह आ रही हैं, काफी तरह की न्यूज आती हैं। नया कोरोना का स्ट्रेन निकल के आया, नया स्ट्रेन, न्यू टाइप ऑफ कोरोना। सो दैट्स ऑल्सो sends a kind of fear wave to investors. And even the US elections are like into dilemma stage. बहुत सारी political instability है वहाँ पे, तो of course fear factor has to increase. So now let's see what are the charts saying on the markets. Starting with Nifty monthly, great month, markets ऊपर हैं. If you look at this entire uptrend, this blue line trend and this RSI trend on the blue line, this is kind of no divergence. I mean, मार्केट ने भी नया हाई बनाया, RSI भी नए हाई पे है अपने प्रीवियस स्विंग हाई से, सो डाइवर्जेंस बिल्कुल नहीं है. बेस्ट पार्ट, अगर आप इस पूरी की पूरी जो मार्केट चढ़ी है, इसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो इतना वॉल्यूम कभी नहीं था, सालों से नहीं था. तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो मार्केट की चढ़ावट है, that has been on good participation, good volume, so it's a strong and stable one. वीकली चार्ट देखते हैं. वीकली चार्ट पे जो बहुत ही अच्छी चीज है जानने की, अगर आप निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करोगे और समझोगे,
तो आपको याद है 21 तारीख को हम गिरे थे, 21 दिसंबर को, जब मैंने बाइक आपको सेल नहीं रादर 21 से पहले वाले अगर आप जाकर के वीडियो देखो तो आपको दिखेगा पुराने वीडियोस में, यू कैन चेक दैट। फ्राइडे को हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ट्रेंड चैनल के बाहर निकलेगा मार्केट तो हम पुट खरीद सकते हैं। वी मेड गुड मनी एज वेल। 200 रुपए का ऑप्शन दिन भर में 1600 रुपए का हो गया। लोगों ने 10,000 रुपए लगा करके लाख रुपए बनाए एक ही दिन के अंदर, मतलब 6 घंटे के अंदर। व्हाट एल्स यू नीड, कम ऑन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस दिन का जो सपोर्ट प्राइस था दैट वाज अराउंड 13,050-60 ऑट प्राइसेस। नाउ इफ यू सी, अगर मैं यहां से एक वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे आपको आकर के सपोर्ट मिला था और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। अब अगर हम इस पूरे के पूरे टेक्निकल सेटअप पे ड्रॉ करते हैं तो इफ यू कंसीडर दिस वन बॉटम, this is the previous 2019 bottom and this is the deep bottom of correction. So this entire scenario becomes a head and shoulder pattern rather than inverse head and shoulder pattern. Now अगर हम जेनेरिक तौर पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है किसी भी पॉइंट से, मान लो वो पैटर्न शुरू हुआ, बाइंग है, बुलिशनेस है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मार्केट, अगर वो पैटर्न वैलिड है तो जब मार्केट्स उस पैटर्न पे वापस आएंगी तो दे आर सपोज टू टेक सपोर्ट देयर। सो हैविंग सेड दैट 21 तारीख की गिरावट ने कंफर्म किया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। सो दिस इज अ कंफर्म्ड पैटर्न दैट वी आर ट्रेडिंग इनटू निफ्टी हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो यूजुअली टारगेट होता है दैट इज द डेप्थ ऑफ द पैटर्न। अगर मैं इस पूरे पैटर्न का डेप्थ निकालूं तो ये 13,000 से 7500, समवॉट अराउंड 5,500 पॉइंट, यानी कि वी आर लुकिंग एट 18,000 19,000 पॉइंट इन स्टैंडर्ड, जो किताबी भाषा में कहते हैं, तो कंफर्म भी है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, अपसाइड बहुत है मार्केट के अंदर आने वाले। आपको याद होगा जब निफ्टी 12,000 के भी नीचे ही, तब से मैं कहता आ रहा हूं कि हम इतिहास के सबसे बड़े बुल रैली को, बुल ट्रेंड को देखने वाले हैं। एग्जैक्टली वही हो रहा है। इतना बड़ा मैसिव बुल रैली आपको सालों में नहीं दिखा था। अगर मैं सिर्फ इसी जितना चार्ट आपको दिख रहा है सिर्फ इतने की ही बात करें, सो दिस इज मिनिमम 2 years. So in 2 years itself, you can see there has never ever been such a massive rally. So the data speaks itself. Listen to the markets will always tell you what they are trying to do, what's willing to do. So कहने का मतलब कुछ चीजें हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे समझने का ये है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे आप ट्रेड कर रहे हो, उसको कंफर्म भी किया है आपने, एक ट्रेंड चैनल में आप ट्रेड कर रहे हो। तो और तीसरी चीज देखो, अगर आप आरएसआई को देखो तो एक आरएसआई पे एक बहुत ही हाई चला आ रहा था जो कि हमेशा रेजिस्टेंस का काम किया है। इधर भी रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला था, but this time we have broken this resistance level on RSI, that too on a weekly closing. So this also shows quite strength, but again RSI is into 80 range. Let's see how long it sustains. So for now weekly basis पे 18-19 हजार तो चलो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, अभी हम उतना ज्यादा नहीं सोचेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास ये एक बिगर पर्सपेक्टिव है, जो ब्रॉडर पिक्चर है, जो बड़ा पिक्चर आपको दिमाग में अपने बिठा करके रखना है। इस पर्टिकुलर चार्ट स्क्रीन का फोटो खींच के रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये काम आएगा आने वाले सालों तक, आने वाले बहुत लंबे टाइम तक ये आपके काम आने वाला है। अभी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर मार्केट में ये ट्रेंड चैनल जो आप देख रहे हो, जिस ट्रेंड चैनल के बाहर एक ही दिन आप गए थे बट क्लोजिंग वीकली चार्ट पे उसी ट्रेंड चैनल के अंदर मिली है, तो दिस इज अ वैलिड ट्रेंड चैनल दैट मार्केट इज गोइंग। तो अगर ये ट्रेंड चैनल टूटेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस ट्रेंड चैनल के टूटने पे गिरावट अच्छी आ सकती है। तो ट्रेंड चैनल का सपोर्ट कहाँ है? 14,200। इस ट्रेंड चैनल के नीचे कहाँ सपोर्ट मिलेगा? दैट शुड बी अराउंड, ऑफ कोर्स ये जो आपका ब्लू लाइन है हेड एंड शोल्डर का बॉटम, तो ये मिलेगा 13,000 13,500 के आसपास, बिकॉज अपवर्ड स्लोप। सो जैसे जैसे आप हफ्तों में आगे बढ़ोगे ये सपोर्ट लाइन आपका ऊपर की तरफ, बिकॉज स्लोप ऐसे है, ऊपर है, तो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाएंगे ये स्लोप ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका सपोर्ट ऊपर बढ़ता जाएगा। तो हाँ, एक और इंपॉर्टेंट नगेट इन टेक्निकल एनालिसिस, यू शुड नो द स्लोप ऑफ द पैटर्न शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द पैटर्न, व्हिच मींस कि अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये बुलिश रिवर्सल है और इसका स्लोप अगर ऊपर की तरफ है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है इन कंपैरिजन टू एनी अदर पैटर्न विद एनी अदर बुलिश पैटर्न विद अ डाउनवर्ड स्लोप। बेयरिश पैटर्न में डाउनवर्ड स्लोप इज स्ट्रॉन्ग, बेयरिश पैटर्न में अपवर्ड स्लोप इज वीक।
बुलिश पैटर्न में अपवर्ड स्लोप इज स्ट्रॉन्ग, डाउनवर्ड स्लोप इज वीक। तो ध्यान रखने का है, अभी के लिए दो प्राइसेस याद रखें, वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे 13,000 और 14,200। 14,200 के नीचे भी थोड़ी बहुत इंडिसिसिवनेस टू वीकनेस आ सकती है। हम और डिटेल में सपोर्ट लेवल्स को स्टडी करेंगे। डेली चार्ट देखते हैं क्या कहता है हमारा। डेली चार्ट में मैटर बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ खास कहने का नहीं है। प्रीवियस वीक की वॉल्यूम अच्छी थी, मार्केट ऊपर गई है, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो है बॉलिंजर बैंड का अपर बॉलिंजर बैंड, दैट इज 14,400। यहाँ गलती से 1400 लिखा हुआ है, तो बट अगेन दिस इज 14,400 पहला रेजिस्टेंस। 14,400 के ऊपर गुड, it would be a Bollinger Band breakout. Now what happens when we have a Bollinger Band breakout? Look at this. Bollinger Band breakout around 12,000 levels. Markets went to what, 13,000 odd prices. So Bollinger Band का breakout 14,400 के ऊपर मिलेगा। अगर मार्केट्स में किसी तरह की करेक्शन आती है तो ये दो लाइंस हैं जो ग्रीन लाइंस आपको दिख रही हैं, ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगी। दैट इज 14,060, मोटा मोटा समझो 14,000 13,800 इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्राइस। लास्ट वीक वॉल्यूम भी सपोर्टेड है। एक चीज और देखने की है, आरएसआई का जो डाउनवर्ड रेजिस्टेंस लाइन है जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, इस एरिया में ब्रेक हुआ, लुक एट द मैसिव रैली वी गॉट। सिमिलरली वी हैव अगेन ब्रोकन द रेजिस्टेंस लाइन ऑन आरएसआई ऑन इवन वीकली चार्ट्स। मंथली चार्ट पे तो हमने देखा, वीकली चार्ट पे भी काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल टेक्निकल पिक्चर ऑफ द मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ही क्रुशियल जगह पे है। 14,400 बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे ही मार्केट सपोर्ट टच करा है लास्ट सेशन में। तो अगर इसको फेल करता है ऊपर जाने में, अगर आने वाले हफ्ते में हम उसके ऊपर क्लोज होते हैं, बहुत बढ़िया। अगर हम फेल करते हैं देन वी कुड बी हेडेड टुवर्ड टेस्टिंग ईदर द मिड बैंड और द लोअर बैंड। तो उसके लिए थोड़ा सा मार्केट में अपनी ट्रेड्स को प्लान करने के लिए हमें थोड़ा और माइन्यूट लेवल पे जाना पड़ेगा। इट्स लाइक टेलीस्कोपिक विजन होना चाहिए आपके पास, बड़ा पिक्चर किधर है, मंथली चार्ट क्या कह रहा है, वीकली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट क्या कह रहा है, वीक एंड देन आवरली चार्ट क्या कह रहा है। So it's like from a telescopic vision, you are coming into a microscopic vision to understand how to plan my trade right tomorrow. कल कैसे प्लान करना है, ये तो हफ्ता हो गया, महीना हो गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। What about taking your actions tomorrow? So if you see, Bollinger Band में एक्सपेंशन चालू है, आवरली चार्ट पे बहुत ही अच्छा है। लास्ट कैंडल ने बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट किया है और साथ में लास्ट कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। आप गैप के साथ ऊपर खुले थे, गैप के साथ ही डे हाई पे आप क्लोज हुए हो। दिस गैप इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो इन केस मार्केट्स गो अप, you can initiate long with stop losses around 14,200. अगर मार्केट्स नीचे आती हैं you can try and bottom fish around 14,235 जो सपोर्ट लेवल है पहला। तो 14,250 60 70 जो 14,300 तक भी आपको कहीं मिले तो यू कैन ट्राई एंड बाय विद स्टॉप लॉस 14,250। अगर आप 14,250 के नीचे जाते हो तो रिमेंबर यू हैव अ स्पेस टिल 14,110, 14,100 के आसपास। ठीक है, नाउ अब हम एक छोटी सी और एनालिसिस करने वाले हैं, जिस एनालिसिस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मार्केट्स को कहां-कहां इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। रिमेंबर मार्केट्स आर इनटू एन अनचार्टेड टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी जहां पे हमें कुछ पता नहीं है। मार्केट कभी 14,000 गई नहीं है, 14,500 600 15,000 कभी गई नहीं है। तो जब गई नहीं है तो नए जगह की टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, तो नई जगहों की टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत सुंदर सा टूल है जिसे कहते हैं फिबोनाची टूल। तो आज हम फिबोनाची प्रोजेक्शंस की मदद से हम आने वाले इमीडिएट हडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। Now, this is the Fibonacci Fibonacci extension. There are two things. Fibonacci retracements कि कोई चीज अगर 100 रुपए चढ़ी है तो कहां कहां आके सपोर्ट ले सकती है, like 38% retracement, 50%, 61%. Similarly, there is a price extension कि अगर कोई चीज 100 रुपए चढ़ के 50 रुपए गिरती है तो उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो कहां कहां जा सकती है। Now, Fibonacci के प्रोजेक्शंस को निकालने के बहुत अच्छा सा मेथड है कि मार्केट में जितने भी स्विंग लो स्विंग हाई छोटे छोटे ट्रेंड्स बने हैं, लाइक मार्केट मेरा स्विंग हाई, देन मेरा स्विंग लो, हाई अगेन, न्यू हाई, देन अ स्मॉल लो अगेन, देन अ न्यू हाई। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड, हायर हाइज एंड हायर लोज। आप इस चार्ट पे देखो, वीकली चार्ट पे लोज, एक लो यहाँ, दो लो यहाँ, तीन लो यहाँ, चौथा लो इधर, पांचवा लो इधर छोटा सा। तो दिस इज हायर लोज एंड हायर हाइज। तो अगर आप इस लो टू हाई
टू दिस हायर लो पे अगर अगर आप प्राइस एक्सटेंशन बनाओगे तो ऊपर कहां कहां एक्सटेंशन से मार्केट जा सकती हैं, आपको इनका जोन मिलेगा। नाउ अब क्या है कि when you have a bigger data, what you can do is you can plot these extensions on multiple highs, lows, highs, lows, highs, lows. Now, if you do that, you will find that there will be some common prices that will get repeated, the cluster of price extension. So those cluster of price extensions are very, very important. कहने का मतलब मान लो पहले स्विंग का कोई प्राइस एक्सटेंशन मेरे को कोई प्राइस मिल रहा है 14,500, दूसरे में भी कोई एक एक्सटेंशन मिल रहा है 14,600, तीसरे में भी कोई एक्सटेंशन मिल रहा है 14,550। तो कहने का मतलब क्या है कि 14,500-600 का जो रेंज है दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट पॉसिबल थिंग। तो मैंने यही किया है, तीन अलग अलग हमने यहाँ पे मुझे चार्ट पे दिख रहे हैं तीन अलग अलग स्विंग्स, स्विंग लो, हाई, लो। तो यहाँ का एक एक्सटेंशन हमने निकाला, फिर दूसरे ट्रेंड का एक्सटेंशन निकाला, फिर तीसरे ट्रेंड का एक्सटेंशन निकाला। तो इसमें दो प्राइसेस हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें आ रहा है सबसे पहले 14,600, ठीक है। आप इसमें भी देखोगे लास्ट वाले में 14,624, दैट इज 0.61%, दिस इज 618 रिट्रेसमेंट। तो 14,600 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, 14,600 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी आप 14 के देखो ऊपर जा चुके हो, और भी बहुत सारे मिलेंगे, लाइक 13,500 का रेंज आपको मिल जाएगा। बट अगेन बॉटम लाइन बहुत सिंपल है, और बॉटम लाइन सिंपल ये है कि जो हमें कॉमन प्राइसेस हैं वो ढूंढने होते हैं बेसिकली। तो आप देखो 14,600 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है, मार्केट अगर ऊपर जाती है देन यू कुड बी गेटिंग इमीडिएट रेजिस्टेंस अराउंड 14,600। तो 14,600 का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 14,600 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज निकल के आता है वो है 15,000 का। आप लास्ट रिट्रेसमेंट में देखो 15,005, लास्ट वाली प्राइस एक्सटेंशन में देखो एक 15,005 है, और इस वाली में भी 15,060 है। तो कुल मिलाकर के 15,000 15,100 का जो प्राइस बैंड रहने वाला है, 15,000 तो ऐसे भी एक साइकोलॉजिकल प्राइस हो गया, तो 15,000 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। So 14,600, 15,000 is where you need to be precautious. That's it. कि मार्केट ऊपर कहां तक जा सकती है, जाने को तो sky is the limit. I mean, I just told you. On weekly charts of Nifty, markets can go to 18,000 to 19,000 price levels as per the head and shoulder pattern. But again, 5,000 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं होगा ना, 5,000 पॉइंट के लिए 3,000 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। उतनी देर में तो मार्केट वुड बी लाइक इनटू ह्यूज मैसिव करेक्शंस, यू विल ब्लीड आउट ऑफ एनीथिंग। तो ध्यान रखने का है। Having said that, I hope you got important levels noted down. Let me summarize it for you. In case markets fall, your immediate supports would be placed around 14,200 to 250, then 14,100, then 14,000, and then 13,800. These are your four supports. On the upside, immediate resistance would be at 14,400, जहां पे हम थे ही ऑलरेडी। तो देखने हो सकता है अगर मार्केट्स कल पॉजिटिव रहती हैं तो हम उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हो। तो देखने वाली बात होगी क्या हम पहले घंटे में 14,400 पे सस्टेन करते हैं। अगर सस्टेन करते हैं, ग्रेट, दैट्स अ ब्रेकआउट ऑन आवरली चार्ट एट लीस्ट, एंड यू कैन डू अ स्मॉल ट्रेड ऑन टू इट, कीपिंग द गैप एज अ स्टॉप लॉस। या उस गैप में मार्केट कभी दिन में वापस आती है तो you can initiate your buying. On the upside, two prices that you need to keep in mind, 14,600 and 15,000 level. Simple. Now let's move on to Bank Nifty. मंथली चार्ट सुंदर है। आप यहाँ पे मंथली चार्ट देखने से पहले यहाँ पे मैं चाहूंगा कि हम दो चीजें पहले देखें, प्राइस चार्ट बाद में देखते हैं। हम पहले देखते हैं थोड़ा सा आरएसआई चार्ट को। आप देखो ये जो बड़ी वाली ब्लू लाइन है, ये आरएसआई का रेजिस्टेंस लाइन चला आ रहा था, जिसका हमें ब्रेकआउट मिला है, प्लस हम 60 के ऊपर निकले हैं अभी। अब इसी चीज को हम चलते हैं और निफ्टी पे देखते हैं क्या हुआ था। ऐसा ही कुछ रेजिस्टेंस लाइन था जिसका ब्रेकआउट मिला और मार्केट 60 के ऊपर आई, एंड दिस हैपेंड वेयर समवेयर अराउंड हियर, that would be some 12,000. Now we are at 14,000. So exact same thing is happening now in Bank Nifty as well. So on the upside, don't fight the market. This is not the market to short until you have a specific price confirmation. Because if this resistance breaks out and if this thing plays out, you can see a sudden spike, a big rally on the upside. Sudden spike. If this plays out, if this doesn't play out, remember ये बड़ा सा जो रेड लाइन दिख रहा है ना, this is the लक्ष्मण रेखा।
हाँ, स्टॉक मार्केट में लक्ष्मण रेखा टूटती है बहुत आसानी से, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। तो आप एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज में हो, ये ध्यान रखने का है कि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज में है, तो अपसाइड अगर निकलेगा तो बहुत हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस टूटेगा एंड देयर वुड बी अ गुड ब्रेकआउट। सो बैंक निफ्टी मंथली चार्ट इज स्ट्रांग, इट्स अ नियर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। नाउ वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू सी कि जब भी मंथली चार्ट पे आप 60 के ऊपर जाते हो तो होता क्या है, आप यहाँ देखो 60 के ऊपर गए हो समवॉट अराउंड हियर, बट अगेन आपने यहाँ पे प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा है। जब आप एक तो प्रीवियस स्विंग हाई आप तोड़ो आरएसआई पे और 60 के ऊपर जाओ, दो चीजें जब होती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखो 60 के ऊपर गया बट पीछे का कोई ऐसा हाई वाई टूटा नहीं, बहुत वीक था मार्केट, आप करेक्शन में चले गए। यहाँ पे भी देखो हाई टूटा लेकिन पुराना वाला हाई पे ही रेजिस्टेंस मिला एंड मार्केट्स वेंट डाउन, सो इट वाज अ साइडवेज मार्केट। Here what happened, markets went 60 above and then it broke this resistance level somewhat around here। तो यहाँ पे कहीं आप लगा लो 60 का रेजिस्टेंस के बाद पुराना हाई टूटता है, then you saw the upside, a massive upside। same thing here, RSI 60 के ऊपर गया लेकिन पुराने हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस मिला, मार्केट साइडवेज हो गई। यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला तो पुराना का पुराना जैसे ही ये हाई टूटा रेड लाइन and you see this kind of upward momentum, 17,000 की चीज 32,000 हो जाती है। So similarly RSI is very important प्राइस पे है, कहने का मतलब ये कि 60 के ऊपर RSI है, अगर हम 60 के ऊपर जाके 65 का ब्रेकआउट देते हैं या 65 के ऊपर फिर ये 70 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस और मिल सकता है, अदरवाइज यू कुड बी हेडेड फॉर अ बिग अपसाइड। तो दिस इज द मंथली चार्ट पिक्चर, करंट लेवल्स पे आप रेजिस्टेंस रेंज में हो, ऊपर जाना बहुत जरूरी है फॉर द मोमेंटम टू कंटिन्यू। बैंक निफ्टी जितनी जल्दी 32,600 के ऊपर निकले इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी का महीना 32,600 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज द स्टीम विल फेड आउट। वीकली चार्ट पे बहुत अच्छी चीजें हैं, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस आरएसआई पे टूटा है, उल्टा मार्केट ने सपोर्ट लेकर के मार्केट चढ़ी है, दैट्स अ ग्रेट। आप देखोगे 29,100 इज गोइंग टू बी अ वीकली सपोर्ट, दैट्स द हैमर, जो ये हैमर बना है दिस इज गोइंग टू एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। रेजिस्टेंस 32,600, तो अभी आप हफ्ते के लिए जो अपसाइड डाउनसाइड का ट्रेडिंग रेंज मानोगे किसी गिरावट में, मैक्सिमम डाउनसाइड, it would be very important to see if 29,100 is defended or not। So जब तक आप वीकली क्लोजिंग 29,100 के नीचे नहीं मिलती है, you don't think about shorting। रेस्ट रेजिस्टेंस 32,600 पे है, I would want to see this week closing above 32,600। if that doesn't happen, maybe we'll go for a sideways to consolidation or a correction। डेली चार्ट पे देखें, अब डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट पे भी देखोगे तो 31,000 से 30,900 जो है वो एक प्राइस सपोर्ट रेंज है, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज भी है। सो 31,000 30,900 पे ध्यान रखना है नीचे की साइड में। बाकी अगर मार्केट थोड़ी भी ऊपर खुलती है तो बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हो रहा है, बैंड एक्सपेंशन मिलेगा, बैंड वॉक मिलेगा एंड again on the upside। So first support would be placed around 32,300 sorry 30,900, यानी कि 31,000 जो है, अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है तो 31,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अपसाइड में 32,300 के ऊपर बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट भी मिलेगा तो अच्छा टर्न आपको रिटर्न मिल सकता है। रेस्ट हम अप्रोच कर रहे हैं, बजट आने वाला है 1 तारीख को, 1 फरवरी को, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में, हमें भी प्लानिंग करनी है, तो इस वजह से आज हम बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं लेकर के नहीं आए हैं। आई टेल यू व्हाट टू डू विद योर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो आखिरी घंटे की कैंडल डोजी कैंडल थी और हाई वॉल्यूम के साथ डोजी कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसने उसके पीछे का जो डे लो था उसको नहीं तोड़ा है, और जो गैप से ओपन हुई थी मार्केट, ये जो गैप है गैप पे ही सपोर्ट मिला है। तो मार्केट्स अगर पॉजिटिव खुलती हैं, पॉजिटिव ट्रेड होती हैं, आई वुड लव टू लॉन्ग, बट इन केस नेगेटिव खुलती हैं, नेगेटिव जाती हैं, देन यू नीड टू बी वेरी प्रिकॉशियस कि आपको कहाँ सपोर्ट मिलता है, पॉसिबिलिटी कहाँ है सपोर्ट मिलने की ड्यूरिंग द डे। इट वुड बी 31,900। in case markets go down, the first support would be around 32,000 के ही आसपास आपका पहला सपोर्ट है। आप 32,300 के आसपास क्लोज हुए हो कहीं, ठीक है, तो
सॉरी 32,000 के ही आसपास आप क्लोज हुए हो, 30,080-85 इज व्हाट वी हैव सीन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे जाएगी 31,950, 31,800 से 750 और 31,450, ना यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज, अगर आप 32,000 के नीचे जाते हो तो ये आवरली चार्ट का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये टूट जाएगा, बट इट डजंट मीन कि आप शॉर्ट करोगे। क्यों नहीं शॉर्ट करोगे? देखो, कई बार क्या होता है, जब हम चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करते हैं, देन यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कमिंग बाय टुगेदर। अभी देखो वीकली चार्ट पे आपका 31,000, 29,000 पे सपोर्ट है, लेकिन अगर आप 31,500 से 32,000 देखोगे तो बीच में 3 सपोर्ट आपको निकल के आ गए, 31,900, 31,800, 31,750, 31,450। तो इट्स अ वेरी क्लस्टर सपोर्ट रेंज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सपोर्ट के क्लस्टर में घुसोगे, डिमांड कहीं से भी आ सकता है, शॉर्ट नहीं करना। रादर बी वॉचफुल कि इस रेंज, इस पूरे प्राइस बैंड में कहां से मार्केट रिवर्स होती है। स्टे विद द ट्रेंड, व्हेन द ट्रेंड इज अप find buying opportunities, when the trend is down find selling opportunities on resistances. So सेल सोचना नहीं है फिलहाल, तो आपको बाई करना है, बट अगेन या तो क्लियर ब्रेकआउट पे कीजिए या तो एक अच्छे सपोर्ट पे कीजिए, कहीं भी मत खरीदिए। तो दैट वाज दी बैंक निफ्टी पार्ट। बैंक निफ्टी के भी प्राइस लेवल्स बता देता हूं। अपसाइड 32,400 के ऊपर आवरली चार्ट पे दिन भर के लिए अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, 32,600 के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा, और अगर आप नीचे जाते हो तो सबसे पहले तो 32,000 ही आपके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। देन यू हैव योर सपोर्ट प्राइस ऑफ 32,000 से 31,500 तक एक पूरा सपोर्ट का क्लस्टर है। और वीकली सपोर्ट कहाँ है? 29,000 पे, 29,100 पे। सो दीज आर योर डाउनसाइड प्राइस बैंड्स। हम शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक मार्केट 31,500 के ऊपर है, या जब तक हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट कन्विक्शन नहीं है। और करेंगे भी तो ऑप्शंस के जरिए करेंगे, फ्यूचर के जरिए नहीं करेंगे। फ्यूचर के जरिए हम तब मार्केट को शॉर्ट करके बैठते हैं जब ट्रेंड डाउनसाइड होता है, और जब तक आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तब तक ऑप्शन से ट्रेड करो, बिकॉज ऑप्शंस वुड हैव लिमिटेड रिस्क। विद द ट्रेंड फ्यूचर्स यू कैन गो विद दैट। अब जाते हैं, हम देखते हैं बाकी के इंडिसेस, बाकी के सेक्टर्स पे हमारा क्या ओपिनियन है एंड हाउ डू वी प्लान आवरसेल्व्स। सो स्टार्टिंग विद आईटी, पहले भी बताया था, पिछले हफ्ते ही बताया था, आईटी में पार्टी चल रही है, आईटी अप एंड अप एंड अप चला ही जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे में? कहाँ खरीदना है या कहाँ बेचना? बेचने का सोच नहीं सकते, अगेंस्ट द ट्रेंड जाना नहीं है, तो नीचे कहाँ खरीद सकते हैं? तो मैंने क्या किया है, आपको छोटे से ट्रेसमेंट लेकर के आया हूँ। ध्यान से प्राइस लेवल्स को नोट कर लीजिए। अगर इंडेक्स इन प्राइस लेवल्स पे कहीं सपोर्ट लेता दिखता है, देन यू कैन इनिशिएट लॉन्ग्स ऑन करेक्शन। At the end of the day, we are not here to जंप, उड़ते हुए रॉकेट को कैच नहीं करना है, हमें रॉकेट में खुद को बैठना है, आराम से मार्केट साइड रहेगी, फिर हमारे बैठने के बाद रॉकेट उड़ेगी तो हम भी आसमान तक पहुंचेंगे, वरना दिक्कत है। सो अगर कोई करेक्शन आता है तो 22,650 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 20,445, तीसरा सपोर्ट 18,661 आईटी इंडेक्स। नाउ कम टू मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स में आप देखो, अगर मेटल इंडेक्स नीचे आता है तो मेटल इंडेक्स भी काफी क्रुशियल रेजिस्टेंस रेंज पे है। आप ये देख लो, ये जो प्राइस रेजिस्टेंस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस करीबन 4,000 के आसपास है। तो आई वुड से अगर प्रीवियस डे हाई टूटता है मेटल इंडेक्स के अंदर, पिछले सेशन का हाई टूटता है, यानी कि 3,546 के ऊपर अगर मेटल इंडेक्स जाता है, so for next 10% upside, you can find out some good buying opportunity in any of the metal stocks, and we are already holding longs into Tata Steel and Hindalco, so enjoy. Now Nifty Pharma. Nifty Pharma again ने एक बहुत बड़ा सालों का करेक्शन था, जिसको कंप्लीट करके अपने हिस्टोरिकली हाई प्राइस के आसपास पहुंच रहा है। 13,950 पे हिस्टोरिकली हाई प्राइस है, अभी 13,275 चल रहा है। तो अगर कोई करेक्शन आता है तो सबसे पहली चीज 11,900, 12,000 से कुछ सपोर्ट बहुत नीचे है, रेजिस्टेंस बहुत पास है। तो
नया नया बाय इनिशिएट करने का नहीं बनता। जानने वाली बात यह है, अगर कोई अपसाइड का ब्रेकआउट 13,995 के ऊपर मिलता है तो आपको कप पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा। आप ये जो देख रहे हो, ये जो बड़ी की बड़ी लाइन देख रहे हो, दैट इज द डेप्थ ऑफ द कप पैटर्न, and this cup pattern breakout can take the markets to 50% on the upside around 20,000 index levels. Yes, that's how strong it can be. So दो चीजें जानने की हैं, हाई टूटेगा तो कप पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, बट आप रेजिस्टेंस रेंज में हो, हाई तो टूटा नहीं है अभी, तो करना क्या है, हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमारे पास ऑलरेडी पीछे से लॉन्ग चला आ रहा है डिविस लैब, औरो फार्मा, काफी अच्छे रिटर्न्स में है, तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है, हम इतने ऊपर नहीं खरीदेंगे अभी, क्योंकि आप रेजिस्टेंस के पास में हो, रेजिस्टेंस टूट जाने दो फिर नया बाई कर सकते हैं। तो अभी आप प्रॉफिट में हो ऑलरेडी, सो अभी होल्ड करो और कुछ भी नया नहीं करना। दिस इज रियलिटी। रियलिटी भी बहुत अमेजिंग है। आप देखो ये पूरा का पूरा साल भर से ऊपर का करेक्शन, एक अच्छा सा नाइस कप पैटर्न बना है इसमें, और अगर 331 के ऊपर जाता है, यानी कि 340 के ऊपर मान लो मोटा मोटा अगर आपका इंडेक्स निकलता है, तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, and that would be a cup pattern breakout, and this cup pattern breakout has a potential of approximately 50% on the upside. नॉर्मली कप पैटर्न का टारगेट होता है, जो डेप्थ ऑफ द कप है दैट इज ऑन द अपसाइड टारगेट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 374 फॉर श्योर, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस वहां भी देखना इंपॉर्टेंट होगा, बट इधर से कप पैटर्न तो चलेगा। तो बेसिकली अगर 330-40 के ऊपर इंडेक्स निकलता है तो आई एक्सपेक्ट मार्केट्स टू टेक सपोर्ट आइदर ऑन 331 और ऑन 327। या तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिले ब्लू वाली, या तो इस पर्टिकुलर पहला ही ये कप के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे मिल सकता है, वरना हो सकता है आप एक साइडवेज कंसोलिडेशन देके फिर ब्रेकआउट दो, एंड दैट वुड मेक इट अ कप एंड अ हैंडल पैटर्न। सो आने वाले टाइम में हाउ द टेक्निकल पिक्चर डेवलप्स इज व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस बात का बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल सकती है। नाउ दिस इज निफ्टी ऑटो। ऑटो में मैंने पहले ही बताया है। नाउ दिस इज अ गुड वन। गुड वन क्यों है? पिछले हफ्ते आपको बताया था खरीदने को टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो आप देखो ब्रेकआउट मिला है, नया ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस तोड़ के आप ब्रेकआउट दे रहे हो, ऊपर में सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस है 10,600 के आसपास, अपसाइड में जगह है, रेजिस्टेंस बहुत पास है, आप ऑलरेडी इसी रेजिस्टेंस रेंज में खरीद करके बैठे हो, रिस्क बहुत कम है। तो सिर्फ ऑटो इंडेक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो। बाकी सारे इंडेक्स में क्या है, अगर आप अभी खरीदते हो तो आप रेजिस्टेंस रेंज में खरीद रहे हो, प्रॉब्लम बस इतनी है। तो ऑटो लॉन्ग नाउ, तो इसलिए मैं सिर्फ एक नया स्टॉक लेके आया हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का थोड़ा इसको ना दूर करते हैं, हाँ इधर करते हैं। मंथली चार्ट 60 के ऊपर निकला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉन्ग टर्म बुलिश हो चुका है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बट अगेन चूंकि मंथली चार्ट है, जरूरी ये नहीं है कि अभी 60 पे के ऊपर है, जरूरी ये है कि महीना 60 के ऊपर क्लोज हो, तभी जाकर के काम बनेगा। अब वीकली चार्ट भी 60 से पहले ही सपोर्ट लेके घूम गया, डेली चार्ट पे भी अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो यू कैन इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन। मैंने पर्सनली खरीदा है महिंद्रा एंड महिंद्रा अराउंड 760, तो आप खरीद सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा को, एंड यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस अराउंड 700, 740, 45, 750 के आसपास आप रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस। सो दैट वुड बी ऑल। नाउ अब हम बात करते हैं कि अब पोजीशंस कैसे मैनेज करनी। हम नई ट्रेड तो सिर्फ एक लेकर के आए हैं, चलो पहले पोजीशंस कैसे मैनेज करनी है वो जानने से पहले ना हम एक चीज और कर लेते हैं कि हम अपने ट्रेड्स देख लेते हैं, हाउ आर दे परफॉर्मिंग और किनके साथ क्या क्या करना है, और हम फिर बात करेंगे बॉटम लाइन में, एक लाइन में कैसे अपने पोजीशंस को मैनेज करना है, कैसे अपने फंड्स मैनेज करने हैं, किस तरीके से आपको इस मार्केट के साथ डील करना है। Let me open up my Excel.
ओके, सो टाटा स्टील 40% के मुनाफे में चल रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, 510 से बाइंग है आपकी। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए 680 पे, करंट भाव 713 का है। HDFC बैंक 1396 से आपकी बाइंग है, 1431 पे चल रहा है, 2.5% के मुनाफे पे है। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस रेंज में है, एसएल एट कॉस्ट। जुबिलेंट फूड 2600 पे आपने खरीदा था, आपका जो टारगेट है 2750 से 3100, आपका पहला टारगेट लग चुका है, 2900 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। सिंपल, जो फर्स्ट टारगेट है 2750 का, उसके 50 पैसे और 50 रुपए और ऊपर 2800 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करो। जी लिमिटेड 215 से आपने खरीदा है, 231 पे चल रहा है। मार्केट्स अगेन इंपॉर्टेंट रेंज में है और जील एक बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है, ये बहुत ही तेज ऊपर नीचे होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस मेंटेन करो फिलहाल के लिए। डेविस लैब 3860 का प्राइस चल रहा है, 2.5% ऊपर है आपकी बाइंग प्राइस से। 3950 पे ट्रेड हो रहा, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करो 3800 अप्रोक्स। बायोकॉन की पोजीशन ओपन है, 2% नुकसान पे है, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 465 पे ये अभी ट्रेड हो रहा है, 460 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मैं लिख देता हूं यहाँ, 460 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, एग्जिट कर लीजिएगा। 2.5-3% की क्या प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसे 3-4% का नुकसान होता रहे और 40%, 12%, 13-23%, 10%, 10%, 33%, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट आते जाएं, तो एट द एंड ऑफ द डे द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू विन, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंजम्पशन थोड़े फ्लैट साइड पे चल रहे हैं, सो इट्स ओके, इट्स अ लॉन्ग टर्म बेट एनी विच वेज। कम क्वांटिटी में रखिए, बने रहिए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर सालों से डाउन ट्रेंड में नहीं गया है और जाएगा भी नहीं इतनी आसानी से। But still, looking at the market picture, what you can rather do is, in case you get a nifty closing below 14,200, you can reduce your position to 50% and hold the rest. रिलायंस क्लोज हो चुका है 1960 के ऊपर के ही पास। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस करा था कि ये 20 डीएमए के ऊपर निकला है, तो हमने उसके लिए इसको खरीदा है। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तो हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। तो हमने 1960 पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है 0.4% के नुकसान पे, बहुत छोटा सा। टाटा मोटर्स 200 के ऊपर ट्रेड हो, 200 के ऊपर मार करके आया है, 190 पे आपने खरीदा था, एंजॉय। हिंडाल्को की बाइंग पोजीशन है, यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाई पोजीशन है, ध्यान रखिएगा उसका। सो दैट वुड बी ऑल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक। नाउ अभी जैसा मैंने आपको बताया, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि करना क्या है, देखो सारे के सारे सेक्टर्स रेजिस्टेंस रेंज में है, आपके पास पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। नाउ गेट इनटू प्रॉफिट प्रोटेक्शन मोड, बिकॉज अगर मार्केट्स ऊपर जाएंगी ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादातर इंडेक्स, बैंक निफ्टी, रियलिटी, मेटल, ऑटो के अलावा फार्मा, सारे के सारे इंडेक्स, आईटी तो एकदम टॉप पे बैठा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज में बैठे हैं। अगर आप, और अभी के टाइम में जो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपके पास मेटल है, आईटी है, फार्मा है, कंजम्पशन है, यू हैव ऑल द सेक्टर्स, यू आर प्लेस्ड राइटली। सो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर के रुके रहिए मार्केट के अंदर, नई खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑटो इंडेक्स में मुझे एक अच्छा बार्गेन मिल रहा है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। देखिए जब भी मार्केट रेजिस्टेंस रेंज में पहुंचती है तो होता क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज आर नॉट जस्टिफाइड। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलेगा तो ऊपर बहुत बड़ी रैली आ सकती है, और अगर रेजिस्टेंस ने अपना काम कर दिया तो हम करेक्शन में जा सकते हैं। तो दिस इज नॉट द टाइम ऑफ बीइंग अग्रेसिव, डोंट बी अग्रेसिव at this point of time, be little precautious to defensive, get into profit protection mode. That's the message of the day. With that, I hope, काफी लंबा चला ये वीडियो, सॉरी उसके लिए, but I hope I was able to deliver a clear picture on the markets. I was able to equip you with all that you need to know in the coming trading session, in the coming trading week. Wish you all the best, wish you good luck, wish you happy trading, profitable trading. Stay healthy, stay wealthy. Abhishek Raj signing off. Don't forget to like, share and subscribe.